students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. So today's topic that we are going to read about is nutrition in plants. Nutrition is something that everybody needs, even human beings, animals, everybody needs nutrition. We get it from plants, but today we will see that how do plants get their nutrition and where do they get it from. So let's see what are we going to read in this chapter, about the chapter. All living organisms need food for their existence. Food provides essential nutrients to carry out various life-sustaining activities. Living organisms, including animals and human beings, obtain their food either directly or indirectly from plants. But how do plants obtain their food? Do they also need nutrients? Plants can make their own food. They use inorganic substances such as water, carbon dioxide, and sunlight to prepare their food. Just like us, plants also require nutrients for better growth and protection from diseases. In this chapter, we will learn about nutrition and various modes of nutrition in plants. So this is the brief of this chapter. इस chapter में आप nutrition के बारे में पढ़ोगे, but not in human beings or animals, but in plants. हमें भी nutrition चाहिए, animals को भी nutrition चाहिए, हम लेते हैं plants से. But plants किन से लेते हैं? Plants inorganic substances से लेते हैं, जैसे water, then you have carbon dioxide, जो soil में nutrients dissolved रहते हैं. Plants अपना सारा nutrients वहाँ से लेते हैं. So in this chapter we will be reading about the nutrients in plants, how do they get it, and किन चीज़ों से उनको nutrient मिलता है. Let's begin with the chapter. The food we eat contains different components called nutrients. These nutrients provide energy to the body for carrying out various activities. They also promote growth, repair, worn out tissues, and protect our body from various diseases. The process of taking in food and converting it into energy and other vital nutrients required for life is called nutrition. So this is the basic definition of nutrition. जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स आपके खाने में प्रेजेंट होते हैं विच आर इसेंशियल फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के बेटर ग्रोथ के लिए, टाइम टू टाइम आपकी मसल ब्रेक होती है, उन मसल्स को रिपेयर करने के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, आपकी बेटर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, माइंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हर एक फूड आइटम में कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनका बैलेंस्ड प्रोपोर्शन आपकी बॉडी में जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आप ग्रो करते हो. दिस इज न्यूट्रिएंट, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन में. In simple words, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो किस चीज़ से आप खाना ले रहे हो, न्यूट्रिएंट ले रहे हो, और वो लेने के बाद आपकी बॉडी उसको किन तरीकों से यूज़ कर रही है. This is the basic definition of nutrition and the entire concept. Now there are two modes of nutrition. Number one is autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. So किस तरीके से nutrition लिया जा रहा है, किन चीज़ों से लिया जा रहा है, वो भी आपके दो modes में divided हैं. Number one is autotrophic nutrition. The mode of nutrition by which organisms make food by themselves from simple substances is called autotrophic nutrition, and the organisms in which autotrophic mode of nutrition is found are called autotrophs. Auto is equals to self and trophic is equals to nourishment. तो बिल्कुल basic definition में autotrophic nutrition का मतलब होता है जिस मोड से organism अपना खाना खुद ही बना रहे हैं और दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है खाने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए, इज सेट टू बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट. तो अपने आप से जो नरिशमेंट खुद ही ऑर्गेनिजम्स ले लेते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कॉल इट एज autotrophic nutrition. Therefore, plants are called autotrophs as they can prepare their food from inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants are also known as producers. और autotrophs में जो बिल्कुल प्राइमरी आपके एग्जाम्पल आता है वो किसका है? प्लांट्स का. बिकॉज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद ही बनाते हैं. हेंस प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स एंड इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है. प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अपने खाने के लिए किन पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पे. और प्लांट्स अपना खाना तो बनाते ही हैं, साथ साथ दूसरों के लिए भी खाना प्रोड्यूस करते हैं. हेंस दीज आर नोन एज producers also. So plants are autotrophs and they are producers also. Now let's figure out.
We also cook food in our kitchen. Then why are we not called autotrophs? तो हम भी अपने घर में अपना खाना खुद ही बनाते हैं, but still we are not known as autotrophs. रीज़न क्या है? क्योंकि ये खाना हम पहले तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में लेकर आते हैं. या तो प्लांट बेस्ड आपका डाइट होगा तो आप सब्जियां लेकर आओगे, नॉन वेजिटेरियन आपका इंटेक होगा तो फिर आप नॉन वेजिटेरियन आइटम लेकर आओगे. उसके बाद उस खाने को आप कुक करते हो एंड देन यू कंज्यूम इट. Hence we are not autotrophs. Now let us learn how green plants prepare their food and how this food is transported to various parts of the plants. अब देखेंगे कि ये खाना जो बनाते हैं plants किस प्रोसेस से बनाते हैं और इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती हैं. So the process is photosynthesis, food making process in plants. Green leaves of plants have a particular kind of tiny structures in their cells. These tiny structures are called chloroplasts. The chloroplasts contain a green pigment called chlorophyll. तो सबसे पहला क्या है, जो green plants होते हैं, photosynthesis only and only happens in green plants, और किसी plant में photosynthesis आपको देखने को नहीं मिलेगा. रीजन आपको आगे बता दिया जाएगा. ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनमें बहुत छोटे छोटे टाइनी सेल्स होते हैं एंड वी कॉल देम क्लोरोप्लास्ट. अब इस क्लोरोप्लास्ट में भी आपका एक ग्रीन पिगमेंट होता है. पिगमेंट का मतलब क्या होता है? कलर. ग्रीन कलर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, विच इज वेरी 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 इसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए. Chlorophyll gives green color to the leaves and absorbs sunlight and converts it into chemical energy. The leaves use inorganic substances such as water and carbon dioxide present in the surroundings and prepare food. This process is known as photosynthesis. Photo is equals to light and synthesis is equals to combine. तो क्लोरोफिल जो होता है जिसमें ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से लीव्स का कलर जो आपको ग्रीन दिखाई देता है, इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. जो लीव्स आपकी ग्रीन नहीं होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. नाउ व्हाट डू दे डू? सनलाइट को ये अब्जॉर्ब करते हैं, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, सराउंडिंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंजम्पशन करते हैं और इन तीनों के साथ मिलकर फिर अपना खाना ये बनाते हैं. सो व्हाट ऑल थ्री थिंग्स वी रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस? वन इज वाटर, देन वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन होता है. और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. एंड इन फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, मिलाना. Glucose is the immediate product of photosynthesis. This is utilized by the plants for getting energy. Some of the glucose is converted into starch and stored in different parts of the plant. In addition to glucose, oxygen is also released as a byproduct of photosynthesis. The entire process can be written in the form of the following equation, wherein 6 CO2, which is carbon dioxide, plus 6 molecules of H2O, which is water, in the presence of sunlight and chlorophyll gives out C6H12O6, which is glucose, plus 6O2, which is ऑक्सीजन. तो जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, जो इमीडिएट प्रोडक्ट आपको मिलता है, इट इज ग्लूकोज, जिससे प्लांट्स को अपनी एनर्जी मिलती है. अब कुछ ग्लूकोज जो होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च और प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाके ये अब्सॉर्ब हो जाता है या स्टोर हो जाता है. एंड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इस पूरे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट जो निकलता है, we call it as oxygen, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स कंज्यूम करते हैं. अब फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है, इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन वी हैव 6 H2O which is water. सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. एंड देन व्हाट डू वी गेट? वी गेट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ photosynthesis. Now let's see what is the mechanism behind photosynthesis. For photosynthesis, the leaves get water from the soil and carbon dioxide from the air. Water and minerals are absorbed from the soil by the roots, carried to the stem and finally to the leaves through water conducting tissues and xylem vessels. These vessels are present throughout the plant body or as series of water pipes from roots to leaves, and small aerating pores present in the leaf called stomata allow carbon dioxide to enter the leaf and oxygen to release into the atmosphere. Now photosynthesis का पूरा प्रोसेस आपने ऊपर समझ लिया किस तरीके से ये होता है. अब उसके बाद जो आपका खाना बनता है प्लांट्स में, वो किस तरीके से पहुंचता है? जो लीव्स होती हैं, दे अब्जॉर्ब ऑल काइंड ऑफ वाटर, सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेती हैं,
सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड देन धीरे धीरे जो आपके रूट से ये चीजें अब्जॉर्ब होना शुरू होती हैं, वो जाइलम जो आपका वैस्कुलर बंडल पूरा होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है प्लांट्स में, पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा भी है, उसमें जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या करता है, सारे फूड पार्टिकल्स को प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाता है, दैट्स हाउ प्लांट्स गेट देयर न्यूट्रिशन। और स्टोमेटा जो होता है, लीव्स होती हैं, लीव्स के अंडर साइड में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच यू गेट टू सी फ्रॉम द माइक्रोस्कोप, स्टोमेटा उन्हें बोला जाता है, और इनसे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब भी करते हैं और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करते हैं। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द मैकेनिज्म बिहाइंड फोटोसिंथेसिस। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर। Leaves are called the food factories of the plants as the synthesis of food occurs in them. अब leaves को food factories बोला जाता है, रीजन अभी तक क्लियर हो चुका है, क्योंकि प्लांट का जो पार्ट खाना बनाता है, these are the leaves, hence leaves are called the food factories, क्योंकि खाना बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है वो leaves में ही होता है। Now let's see what is the importance of photosynthesis. Can we imagine life on Earth without green plants and photosynthesis? Definitely not. In the absence of photosynthesis, there would be no living organisms and the Earth would be lifeless. Since the products formed by photosynthesis form the base of food chain which connects all living things, hence the survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food manufactured by green plants. On the other hand, the oxygen which is released as a result of the process of photosynthesis is essential for the survival of all living things. We can sum up the importance of photosynthesis in the following ways. अब before moving ahead, पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस जो है हमारे लिए एक से दो रीजंस बिल्कुल प्राइम रीजंस हैं। नंबर वन बीइंग हमारा जो फूड इनटेक होता है, न्यूट्रिशन होता है, चाहे आप वेजिटेरियन हो या आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो भी आपका जो मेजॉरिटी ऑफ द फूड इनटेक या न्यूट्रिशन होता है यू गेट इट फ्रॉम प्लांट्स। तो अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, यू विल नॉट गेट द फूड दैट यू आर ईटिंग। नंबर वन। सेकेंड, पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। अब अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, देयर विल बी नो ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, हेंस कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सो हाउ कैन वी सम अप द इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग organisms. It helps in providing oxygen in the atmosphere required by all organisms, and the process helps in maintaining balance between oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. ये तीन चीजें हैं जो सम अप कर दी गई हैं। सबसे पहला क्या है कि सारे ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी के लिए प्लांट्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, हेंस नो प्लांट्स नो लाइफ। देन वी हैव ऑक्सीजन एज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, तो लाइफ उसके बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। एंड थर्ड बीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं, तो जितना भी सराउंडिंग में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका बैलेंस क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अदरवाइज इतना ज्यादा CO2 रिलीज हो जाएगा, इतना ज्यादा CO2 एटमॉस्फेयर में अगर एग्जिस्ट करेगा तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो ऑन एंड ऑल प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मल्टीपल वेज। लेट्स एक्सपेरिमेंट। Objective: to demonstrate that sunlight is necessary for photosynthesis. Materials required: aluminum foil or black thick sheet, dropper, iodine solution and a potted plant with green leaves. Procedure: keep the plant in the dark room for 2 to 3 days. Choose a leaf and cover half of it with black sheet or aluminum foil so that it does not get sunlight. Place the plant in sunlight for a day, plug the covered leaf and with the help of the dropper, put a few drops of iodine solution on it. Observation: you will observe that the covered part of the leaf turns yellow brown while the uncovered part turns blue black, showing the presence of starch. Conclusion: the absence of starch in covered part shows that the sunlight is necessary for photosynthesis. अब इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा कि सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सनलाइट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, चाहे आपकी पत्तियां कितनी ही हरी क्यों ना हो। क्या क्या चाहिए आपको? एल्यूमिनियम फॉइल या फिर आपको एक ब्लैक थिक शीट चाहिए, यू नीड अ ड्रॉपर, आयोडीन सोल्यूशन, एक पॉटेड प्लांट, एक गमला चाहिए, एंड यू नीड उस पूरे गमले में आपकी हरी पत्तियां होनी चाहिए। सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन के लिए उस प्लांट को बिल्कुल अंधेरे कमरे में रख देना है जहां पर आपकी बिल्कुल भी सनलाइट ना पहुंचे। देन यू हैव टू चूज अ लीफ, उसको आधा आपको एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक थिक शीट से कवर कर देना है ताकि उसमें सनलाइट ना पड़े। उसके बाद आपको उसी सेम प्लांट को सनलाइट में रख देना है।
देन यू हैव टू प्लग अ कवर्ड लीफ और उसके बाद एक ड्रॉपर की मदद से आपको आयोडीन के सोल्यूशन उसके ऊपर डालने हैं। अब आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपकी कवर्ड पार्ट था लीफ का, वो लीफ आपका येलो ब्राउन में टर्न हो जाएगा सोल्यूशन डालते ही, और जो अनकवर्ड पार्ट है वो आपका दूसरे कलर में, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, शोइंग द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हेंस इस पूरी एक्सपेरिमेंट से आपको ये पता चलेगा क्योंकि कवर्ड पार्ट में आपका सनलाइट नहीं था, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो आयोडीन सोल्यूशन डालने पे आपका जो कलर था इट डिडंट टर्न ब्लू ब्लैक क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था। ऑन द अदर हैंड जो लीफ आपकी कवर्ड नहीं थी, अनकवर्ड थी, सनलाइट पहुंचा, फोटोसिंथेसिस हुआ, उसमें जब आपने आयोडीन सोल्यूशन डाला, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की वजह से उसमें ग्लूकोज आपका स्टार्च में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए उसका कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। हेंस वी रिक्वायर सनलाइट फॉर photosynthesis. So we find that sunlight is necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of chemical energy that converts into food by the process of photosynthesis. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. Now let us find out the presence of starch in a leaf. अब आपका क्या है? अब यहाँ पर आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सनलाइट जो है वो आपका अल्टीमेट सोर्स है फॉर एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म के लिए। हमें प्लांट्स चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए अल्टीमेटली। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना CO2 का बैलेंस मेंटेन होगा, ना ही हमें खाना मिलेगा। तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अर्थ पे सस्टेन करने के लिए लाइफ को या लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए वी रिक्वायर सनलाइट। नाउ लेट्स सी एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको ये पता चलेगा कि लीफ में स्टार्च का प्रेजेंस आप किस तरीके से नोटिस करते हो। लेट्स हैव एन एक्सपेरिमेंट। Objective: to demonstrate the presence of starch in a leaf. Materials required: a green leaf, alcohol, burner, test tube, beaker, forceps, tripod stand, water and iodine solution. Procedure: take a leaf from a healthy plant and boil it in water contained in a beaker for about 5 minutes. This will make the leaf soft and stop any further chemical changes in it. Take out the leaf carefully from the water using forceps and place it in a test tube containing alcohol. Place the test tube in a beaker of water and warm the water gently until the alcohol begins to boil. Let it boil until the green color of the leaf completely disappear. Take out the leaf from the test tube using forceps and wash it with water. Put a few drops of iodine solution on the leaf. What will you observe? The observation will be, you will observe that the color of the leaf becomes blue-black, and the conclusion is blue-black color of the leaf confirms the presence of starch in it. Precautions: do not heat the test tube containing alcohol directly on the burner because alcohol is inflammable, that is, it catches fire easily, and do not allow the water in a beaker to boil. Control the flame of the burner and warm it gently. तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बीकर चाहिए, फोर्सेप्स चाहिए, यू नीड वाटर स्टैंड, यू नीड ट्राइपॉड स्टैंड, आयोडीन सोल्यूशन, एक लीफ लेना है, एक हेल्दी पैन में रखना है, पानी में उसको तेजी से बॉईल करना है 5 मिनट के लिए, जब तक उसका ये आपका पूरी की पूरी लीफ को सॉफ्ट कर देगा। फोर्सेप की मदद से बाहर निकालिए, टेस्ट ट्यूब पे रखिए, फोर्सेप की मदद से टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपका अल्कोहल प्रेजेंट हो। उसके बाद इस बीकर को जिसमें आपका वाटर है, वार्म इट जेंटली अंटिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉईल। ज़्यादा तेज से नहीं करना है क्योंकि अल्कोहल इनफ्लेमेबल होता है, आग पकड़ लेता है। धीरे धीरे करना है और उसको बॉईल करना है जब तक लीफ का सारा ग्रीन कलर हट ना जाए। फोर्सेप से बाहर निकालिए, अच्छी तरीके से साफ करिए, लीफ पे आयोडीन का सोल्यूशन डालिए, जो आपका लीफ का कलर होगा इट विल टर्न टू ब्लू ब्लैक। क्यों? ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी अलग तरीके से देख रहे हैं। जिस भी लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा या स्टार्च प्रेजेंट होगा, जैसे ही आप आयोडीन सोल्यूशन उस पर डालोगे उसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, शोइंग यू द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट। एक्सप्लोर मोर। Algae are among the common organisms that produce their own food, autotrophs. They are often seen as slimy, green patches in ponds or in other stagnant water bodies. The green color of algae is due to the presence of chlorophyll, hence they can produce their own food by the process of photosynthesis and produce oxygen as a byproduct. They are the ultimate source of food and energy for the organisms in aquatic ecosystem. So amongst all the plants, we have algae जो आपको बहुत ही slimy सा structure पानी में या ponds के आसपास दिखाई देता है. They are also autotrophs because they make their own food and they're also the producers. ये जो stagnant water bodies होती हैं, कभी कभी आपको काई जमी हुई दिखाई देगी, तो वो जो आपकी stagnant water bodies होती हैं उसके ऊपर एक green सी layer जम जाती है, which we often refer to as algae. They are also autotrophs. They make their own food और aquatic ecosystem maintain करने में ये बहुत ज़्यादा helpful भी होते हैं.
Now let's see the photosynthesis in non-green plants. अभी तक green plants में देखा था, अब देखते हैं non-green plants में किस तरीके से आकर करता है. The leaves, other than green, have other pigments which impart various other colors such as red, yellow, orange, brown, etc. to the leaves. These leaves also contain chlorophyll, but the large amount of other pigments in these leaves mask the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. Example of such a plant is croton. It has colorful leaves. अब आपकी कुछ leaves ऐसी आप देखेंगे कभी कभी green नहीं होती हैं, yellow, red, orange, pink इन कलर्स की आपको दिखाई देती हैं. अब रीजन क्या है, इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट बाकी सारे कलर का पिगमेंट इतना ज्यादा होता है कि ग्रीन कलर वो उसमें बिल्कुल कैमोफ्लाज हो जाता है, आपको दिखाई नहीं देता है, ओवरलुक हो जाता है. अब ये भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. एग्जाम्पल है ऐसे प्लांट का क्रोटॉन. क्रोटॉन की लीव्स ग्रीन नहीं होती हैं, बट स्टिल उनमें भी फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलता है. In autumn, due to shorter days and reduced availability of the water, chlorophyll production in many leaves stops and hence they turn yellow or red before falling off. तो जब ऑटम पतझड़ का मौसम आता है तो आप देखेंगे जो हरी पत्तियां भी होती हैं धीरे धीरे येलो या फिर ऑरेंज या रेड कलर में कन्वर्ट होके झड़ जाती हैं. रीजन क्या होता है, उस टाइम पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका कलर चेंज होता है एंड देन दे fall off from the trees. Now let's figure out. Name other pigments beside chlorophyll that can help plants absorb sunlight. तो और जो pigments help कर सकते हैं sunlight को absorb करने में are the black color या कोई भी dark color जो होता है, ये सारे color sunlight को बहुत अच्छे से absorb करते हैं. Now let's have an experiment. Objective: to demonstrate that chlorophyll is required for photosynthesis. Materials required: a coleus or croton plant's leaf, dropper, forceps, alcohol, test tube, beaker, burner, water, tripod stand and iodine solution. Procedure number 1: plug the leaf of a healthy coleus or croton plant. Second, perform the iodine test on it as performed in previous experiment. Observation: you will observe that the blue-black color is appeared at the green part of the leaf only, showing the presence of starch at these parts. Conclusion: absence of starch in non-green plants if the leaf shows that chlorophyll is required for photosynthesis. तो यहाँ पर आपको कौन सा प्लांट चाहिए, either you need a croton plant or a coleus plant जिसकी जो leaves होती हैं they are partially green. कुछ पार्ट्स आपको ग्रीन दिखाई देंगे, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है. मेजॉरिटी आपका येलो या रेड ऑरेंज किसी भी कलर का हो सकता है, बट कहीं कहीं पार्ट्स में आपको ग्रीन पार्ट दिखाई देगा. उसका आपको एक लीफ प्लग करना है और उस पर आपको आयोडीन का सोल्यूशन डालना है. अब आप देखोगे जहां जहां पे ग्रीन कलर का पिगमेंट है आपकी लीफ में, ग्रीन कलर जहां जहां प्रेजेंट है वहां पर तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, बट बाकी पार्ट्स में नहीं होगा. रीजन, क्योंकि सिर्फ ग्रीन पार्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो वहीं पर स्टार्च स्टोर होता है, तो वहीं सोल्यूशन डालने पर जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा. हेंस chlorophyll is a must for photosynthesis. Now let's explore more. Apart from leaves, photosynthesis also takes place in other green plants of the plant such as green stems and green branches. Most desert plants do not have leaves but have spines, modified leaves, to reduce the loss of water by transpiration. Photosynthesis in these plants is carried out in the green stems. अब आपका जो एक लीफ होता है उसमें तो फोटोसिंथेसिस होता ही है, बट नाउ वी हैव द डेजर्ट प्लांट्स. वहां पर लीव्स नहीं होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, जैसे कैक्टस होता है. कैक्टस में आपको पत्तियां नहीं बल्कि कांटे देखने को मिलेंगे. अब इनके जो आप स्टेम्स अगर आप नोटिस करोगे बहुत ही मोटे होते हैं, बहुत ही पल्पी होते हैं. क्यों? ताकि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से पानी ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि डेजर्ट्स में ऑलरेडी पानी यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा लो रहती है. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस उनके ग्रीन स्टेम से होता है. Synthesis of plant food other than carbohydrates. The food prepared by plants during photosynthesis is in the form of glucose. So glucose is a carbohydrate. It gets stored in some parts of the plant such as root, stem, leaf, fruit and seed as starch. Starch is a complex insoluble form of carbohydrates. Sugarcane, potato, apple etc. are some carbohydrate rich plant products. अब आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं या प्रोड्यूस देखने को मिलता है. अब जितना भी खाना प्लांट्स बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, एंड ग्लूकोज इज अ पार्ट ऑफ और इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ये अलग अलग पार्ट्स में आपका स्टोर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट किसी भी पार्ट में स्टोर हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन, पोटैटो, एप्पल, ये सारे आपके प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है विच यू गेट फ्रॉम प्लांट्स.
Now, along with carbohydrates, plants also need other components of food such as proteins and fats. These nutrients are synthesized with the help of carbohydrates. Carbohydrates are composed of carbon, oxygen and hydrogen. These elements are used for the synthesis of fats and proteins. However, synthesis of proteins also require nitrogen, as proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. But from where do the plants obtain nitrogen? So before moving ahead with this question, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी होती हैं जो प्लांट्स को ज़रूरत होती हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स. अब ये कहाँ से ये सिंथेसाइज करते हैं? दे सिंथेसाइज इट विद द हेल्प ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या चीज़ें आपकी प्रेजेंट होती हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में आपके पास होता है कार्बन, ऑक्सीजन एंड देन यू हैव हाइड्रोजन. ये हेल्प करते हैं टू कंबाइन द फैट्स एंड प्रोटीन्स, एंड उसके बाद आपका ये जो सिंथेसाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन. नाउ वी विल सी हाउ डू एंड वेयर डू द plants get this nitrogen from. As we know, nitrogen is present in abundance in the gaseous form in the air, but plants cannot absorb nitrogen in this form. तो nitrogen जो है एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है, अप्रॉक्सीमेटली 71%, 70 से 71% नाइट्रोजन ही है. बट ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये प्लांट्स एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Farmers add fertilizers rich in nitrogen to the soil. These fertilizers enrich the soil with additional nutrients like sodium, potassium, phosphorus, etc. that are in turn absorbed by the plants and are used to synthesize other components of food. In this way, the plants fulfill their requirement of nitrogen along with other constituents. Nuts, pulses, beans, etc. are some protein-rich plant products. अब आपका किस तरीके से ये absorb होता है? आपके जो नाइट्रोजन होता है, कुछ आपके जैसे सॉइल होता है, सॉइल में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो गैशियस नाइट्रोजन को, जो आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में और वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो जाता है. सॉइल में जैसे ही नाइट्रोजन अब्जॉर्ब हो जाता है वैसे ही प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो इसको अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, एंड देन दे यूज इट. फिर फार्मर्स फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं, उसमें नाइट्रोजन होता है, उससे नाइट्रोजन ये अब्जॉर्ब करते हैं, जिससे इनका जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो और भी ज़्यादा एनहांस्ड हो जाता है. एंड इन दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन. उसके अलावा जो बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं वो भी ये इसी तरीके से करते हैं. आपके फॉर एग्जांपल नट्स हो गए, दालें हो गई, बीन्स हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन रिच प्लांट बेस्ड डाइट होती हैं. ऑन द अदर हैंड, मस्टर्ड, सेसमे, सनफ्लावर, कोकोनट एक्सेट्रा आर रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स. अभी आपके मस्टर्ड हैं, सेसमे, सनफ्लावर का, कोकोनट, ये सारे आपके फैट और ऑयल्स के लिए यूज में आते हैं. दे आर वेरी रिच इन फैट्स एंड ऑयल्स. इसके आपको तेल, घी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनसे आपकी बॉडी को फैट्स मिलते हैं. अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्रॉम द टेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. अब आपको अभी तक जितनी भी चीज़ें समझाई गई हैं उसके बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड यू हैव टू आंसर देम ऑन योर ओन. नाउ लेट्स सी द सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हिच इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. The mode of nutrition in which organisms obtain their food and from others, plants and animals, is called heterotrophic nutrition. अब बिल्कुल ऑटोट्रॉफिक का ऑपोजिट. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? आप अपना खाना खुद नहीं बनाते हो, या तो आप एनिमल्स पे डिपेंडेंट हो या फिर आप प्लांट्स पे डिपेंडेंट हो अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए. इट इंक्लूड्स द ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट केपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट. Such organisms are called heterotrophs. As these organisms depend on others for food, they are also called consumers. अब ये जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, ये अपने खाने के लिए दूसरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स और एनिमल्स. तो इसीलिए इनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉफ्स, बिकॉज दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय एनी काइंड ऑफ प्रोसेसेस, हेंस दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स. एंड बिकॉज ये कंज्यूम करते हैं प्रोड्यूसर्स का खाना, कंज्यूम करते हैं हम, hence we are also known as consumers. तो autotrophs को बोला जाता है producers, heterotrophs को बोला जाता है consumers. Some plants do not contain chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants and they use the heterotrophic mode of nutrition. Now we have some plants, non-green plants, जो photosynthesis नहीं कर सकते हैं, तो वो भी बिल्कुल human beings और animals की तरह क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों पे dependent हो जाते हैं अपने nutrition के लिए. Hence, such plants are also known as heterotrophic
plants. अब यही important एक line है that all plants are not autotrophs. Only the green plants are autotrophs. Heterotrophic nutrition in non-green plants can be classified into 3 types. Number 1 is saprotrophic, second is parasitic, and third is symbiotic. Let's begin with saprotrophic nutrition. The mode of nutrition in which organisms take in nutrients in the form of a solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition, and the organisms in which this mode of nutrition is found are called saprotrophs or saprophytes. अब saprophytes कौन से आपके plants होते हैं या non-green plants इन्हें बोला जाता है, जो दूसरे dead and decayed parts of animals and plants, यानी कि जो plants और animals मर चुके हैं, सड़ चुके हैं, decay हो चुका है उनका पूरा matter, उनके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उनके थ्रू करते हैं. Hence, this mode of nutrition is known as saprotrophs, and these kinds of organisms are known as saprophytes. These organisms feed on dead and decaying matter. They include mostly fungi, which are seen growing on bread as mold, or mushrooms, which are seen growing on rotting wood during the rainy season. तो bread को कभी आप गीला कर दोगे और गीला करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दोगे तो उसमें आपको एक फंगस सा लगा हुआ दिखाई देने लग जाएगा सब्सटेंस. दिस इज अ फंगाई और ये आपका एक नॉन ग्रीन प्लांट में ही आता है एंड इट इज अ सैप्रोफाइटिक जो अपना खाना इस तरीके से डिराइव करते हैं. Now saprophytes release digestive juices on the dead matter and convert it into liquid form. They then absorb nutrients from it. Saprophytes are also called cleaners of the environment and hence they are useful scavengers. अब saprophytes क्या करते हैं, because ये dead remains को जितना भी nutrient होता है उसको juicy form में convert करके absorb कर लेते हैं liquid form में, and because ये जितनी भी dead remains होती हैं उनको consume करते हैं और environment को गंदगी से बचा के रखते हैं. They are also known as useful scavengers. During the rainy season, you might have seen white patches developing over leather items such as shoes and leather bags. These white patches are also fungi. But where do the fungi in bread, wood and leather come from? Actually, the spores of the fungi are generally present in the air. When they land on wet and warm things, they germinate and grow, often spoiling the things on which they grow. A moist bread slice has adequate nutrition and moisture necessary for mold spores to germinate and grow. तो ये जितने भी आपके लेदर प्रोडक्ट्स होंगे, ब्रेड होगा, ऐसी चीज़ों पे आप देखोगे कि जैसे ही गीली होने लग जाती हैं या सर्दियों के टाइम पे इसमें आपको वाइट पैच दिखाई देने लग जाता है. दिस इज नथिंग बट फंगस. अब ये फंगस यहाँ पर आता कैसे है? एटमॉस्फेयर में फंगाई के जितने भी पोर्स होते हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. जैसे ही उनको सूटेबल कंडीशंस मिलती है, जैसे गीली चीज़ दिखने लग जाती है, वैसे ही वो लैंड करते हैं और वैसे ही अगर सिचुएशन सस्टेन कर जाती हैं तो वो जर्मिनेट करके ग्रो करना शुरू कर देते हैं. हेंस ब्रेड को भी आप कभी ऐसे निचोड़ दोगे, गीला कर दोगे, छोड़ दोगे डैम्प प्लेस में, बहुत ही अंधेरा दबा के रख दोगे, थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद आप देखोगे उसमें भी आपको फंगस दिखाई देने लग जाएगा. फिगर आउट Why all varieties of mushrooms are not edible? तो कुछ mushrooms जो होते हैं we consume them, they are edible. Edible का मतलब क्या होता है? जो आप खा सकते हो. But कुछ mushrooms आप इसलिए खा नहीं सकते हो because they are poisonous, जहरीले होते हैं. Now let's do an activity. Take a slice of bread and cut it into 3 pieces. On the first piece, sprinkle water and keep it in a plastic bag. Seal it properly so that no air could enter in it. Place it in a warm room. Place the second piece in oven and let it dry. When it's completely dried, put it in the second plastic bag and seal it. Place it in the same room. Keep the third piece of bread in the refrigerator after putting it in the third plastic bag. After a week, examine the bread pieces without opening the bags. You will observe while cottony growth of mold in the first plastic bag, on the other hand, there will be no growth on mold in the other 2 bags. This is because the first plastic bag has all the favorable conditions for the growth of mold, that is warmth and humidity, whereas other bags do not have so. आपको एक ब्रेड का स्लाइस लेना है, 3 पीस उनके आपको करने हैं. पहला पीस में आपको स्प्रिंकल कर देना है वाटर, उसको एक प्लास्टिक बैग में रखना है, अच्छी तरीके से सील कर देना है ताकि कोई भी हवा उसमें ना घुस पाए. उसको एक गर्म जगह पे वार्म रूम में रख दीजिए. दूसरा पीस लीजिए, उसको ओवन में रखिए, ड्राई कर दीजिए बिल्कुल, और उसको बिल्कुल ही जब तक वो ड्राई ना हो जाए तब उसके बाद उसको आप एक प्लास्टिक बैग में रखिए और उसको भी सील कर दीजिए. उसके बाद उसको सेम रूम में रखिए. तीसरा पीस लीजिए, उसकी ब्रेड को आप रेफ्रिजरेटर में रखिए थर्ड प्लास्टिक बैग में. अब आप क्या एग्जामिन करोगे, जब थोड़ी दिनों के बाद आप प्लास्टिक बैग्स खोलोगे बिना सील को खोले,
बाहर से ही आपको दिख जाएगा। जो आपका बिल्कुल गीला था प्लास्टिक बैग के अंदर ब्रेड, गर्म कमरे में था, उस पर आपको कॉटनी मोल्ड फंगस दिखाई देने लग जाएगा। ऑन द अदर हैंड बाकी के जो दो हैं उसमें आपको कोई भी मोल्ड दिखाई नहीं देगा। पहले वाले में इसलिए नहीं क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर के अंदर था, वहाँ पे फंगस ग्रो नहीं करता है, और दूसरे में इसलिए नहीं क्योंकि आपका ब्रेड कंप्लीटली ड्राई था और फंगस को लैंड करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है? मॉइस्चर। तो उसमें मॉइस्चर नहीं था, हेंस उस पर ग्रो नहीं करा। और लेट्स हैव अ नाउ लेट्स सी व्हाट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which an organism lives on or inside the body of other living organism, host, is called parasitic nutrition, and the organisms in which this mode of nutrition is found are called parasites. Parasitic plants are of two types, total parasites and partial parasites. अब parasitic nutrition कैसे होते हैं? ये आप होस्ट बॉडी पे रहते हैं और उनसे फिर अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्लांट पे हैं, ह्यूमन बीइंग में हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो होस्ट बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं। नाउ पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में भी दो टाइप के पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं टोटल पैरासाइट्स एंड देन वी हैव द पार्शियल पैरासाइट्स। लेट्स बिगिन विद टोटल पैरासाइट्स। These plants cannot make their own food and derive all of it from the host plant on which they are totally dependent throughout their life. For example, Cascata, Amar bale is a total stem parasite while Rafflesia is a total root parasite plant. तो total parasites कैसे होते हैं? ये बिना अपने होस्ट प्लांट के सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। ये सारा का सारा खाना, सारा का सारा न्यूट्रिशन अपने होस्ट प्लांट से ही लेते हैं। द मोमेंट द होस्ट प्लांट डाइज, ये भी डाई आउट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरबेल विच इज कस्कटा स्टेम पैरासाइट है, एंड देन वी हैव रेफ्लिसिया जो कि एक टोटल रूट पैरासाइट है। देन वी हैव द सेकंड वन विच इज पार्शियल पैरासाइट्स। They have green leaves and therefore can make food for themselves. However, they get water and minerals they need for making food from the host plant. For example, mistletoe is a partial stem parasite and sandalwood is a partial root parasite. अब partial parasites कौन से होते हैं? इनके पास green leaves होती हैं, इसीलिए ये अपना खाना काफ़ी हद तक खुद बना सकते हैं। However, they get this water and mineral they need for making the food from the host plant. यानी कि photosynthesis के लिए जो पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ये इनको host plant से लेना होता है, but partially ये अपना photosynthesis खुद कर सकते हैं। Hence, they are known as partial parasites. For example, mistletoe है, this is a partial stem parasite, and sandalwood is a partial root parasite. Now, let's explore more. Our body is a walking colony of microscopic monsters, parasites. We cannot always see parasites, but 75% of the world's creatures belong to this family. हमारी बॉडी भी है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे पैरासाइट्स हैं, ऑल्दो हमें ये दिखते नहीं हैं, बट 75% से भी ज़्यादा जो ऑर्गेनिजम्स या क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पे, दे हैव और दे ऑल आर पैरासाइट्स. And the last one is the symbiotic nutrition. Two organisms living in close physical contact with each other and providing mutual benefits are called symbionts, and the condition of living together is called symbiosis. Symbionts live together and share shelter and nutrients. This mode of nutrition is called symbiotic nutrition. तो symbiotic का मतलब ही होता है जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं, दे हेल्प आउट ईच अदर. एक किसी चीज़ में लैक कर रहा है तो दूसरा वो प्रोवाइड करता है, ये जिस चीज़ में लैक करता है वो दूसरा प्रोवाइड करता है. तो ये एक सिम्बायोसिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है. तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं व्हेन दे आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, दे परफॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ईच अदर. दैट व्हाट डज दिस मीन कि एक दूसरे का जो वॉइड होता है दे फिल इट अप. तो इस चीज़ से दोनों को ही एक दूसरे से नेसेसरी न्यूट्रिशन और शेल्टर मिलता है जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली उनको नहीं मिल पाएगा. For example, certain fungi live in the roots of trees in a symbiotic system called mycorrhiza. The tree provides nutrients to the fungus, in return receives help from the fungus in absorbing water and nutrients from the soil. अब यहाँ पर आपका किसका एग्जाम्पल लिया गया है? The example is of mycorrhiza. अब ये जो माइकोर्जिया होता है, इनकी जो रूट्स होती हैं ये सिम्बायोटिक सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं. सर्टेन फंगाई होते हैं जो ट्रीज के रूट्स में रहते हैं. द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट, इस फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न फंगस किस चीज में हेल्प करता है? दे अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. तो किस तरीके से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं.
Another example of association is lichens. Lichens are composite organisms formed by the association of two organisms, algae which are autotrophs and then we have fungi which are saprophytes. तो यहाँ पर भी दूसरा association किसका है? Lichens का है. Lichens आपके ऐसे organisms होते हैं जिसमें आपके दो organisms का मिश्रण होता है, association होता है. सबसे पहला होता है algae, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था, एल्गी आर ऑटोट्रॉफ्स, खुद बनाते हैं अपना खाना. सेकंड वन इज सैप्रोफाइट्स, जो कि सैप्रोफाइटिक होते हैं. Then we have fungus provides a shelter, water and minerals from the soil to the alga. The alga in return prepares food for the fungus by photosynthesis. तो किस तरीके से करते हैं ये? क्योंकि alga अपना खाना खुद बना सकता है, fungus बना नहीं सकता है. अब fungus क्या कर सकता है? Water और minerals को absorb कर सकता है, जो alga नहीं कर सकता. तो fungus क्या करता है? Soil से सारे के सारे water और nutrients को absorb करता है, alga को देता है, alga खाना बनाता है और it shares it with the फंगस. तो इस तरीके से ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉलो करते हैं एंड दे हेल्प ईच अदर इन सस्टेनिंग देयर लाइफ. नाउ नोट, algae इज प्लूरल ऑफ alga while fungi इज प्लूरल ऑफ वर्ड fungus. तो ये आपके सिंगुलर और प्लूरल है. algae जो है, alga दोनों सेम ही है. alga इज सिंगुलर, algae इज प्लूरल और fungi आपका प्लूरल है, fungus इज सिंगुलर. नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर. Some fungi are used to kill bacteria that can cause infections and diseases in humans. They are used to make antibiotics like penicillin and cephalosporin. अब कुछ फंगस आपके ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज करे जाते हैं. Hence they are used in some kinds of medicines also. For example, penicillin. Now let's study about insectivorous plants. Two most important nutrients required for plant growth are nitrogen and calcium. But in marshy and boggy areas, soil is poor in these nutrients. Plants growing in such areas fulfill their demand of nitrogen from external source rather than the soil. They trap insects using specialized leaves or parts of leaves, digest the prey, and absorb the nitrogenous products from their body. Such plants are called insectivorous plants or insectivores. Venus flytrap and pitcher plant are examples of insectivorous plants. अब आपके जो plants होते हैं, two most important nutrients जो plants को चाहिए होते हैं grow करने के लिए, it is one nitrogen and then we have calcium. अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही मार्शी, दलदली मिट्टी में रहते हैं, बॉगी एरियाज में रहते हैं, वहाँ का सॉइल में ये सारी न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं हैं या फिर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, अबंडेंस में नहीं होते. तो हाउ डू दीज प्लांट्स सर्वाइव, हाउ डू दे गेट देयर न्यूट्रिशन? इनकी लीव्स इस तरीके से मॉडिफाइड रहती हैं कि ये नाइट्रोजन और जितना भी न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होता है एक्सटर्नल सोर्सेज से लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पे बैठता है ये अपनी लीव्स को क्या करती हैं? शट कर लेती हैं. तो इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. और ऐसे प्लांट्स जो एक्सटर्नल सोर्सेज स्पेशली इंसेक्ट्स वगैरह को कंज्यूम करके न्यूट्रिशन लेते हैं, वी कॉल देम एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और insectivores. Like for example, in a pitcher plant, the leaves are modified into a pitcher-like structure with a lid on the top. Hair are present inside the pitcher. When an insect sits on the pitcher, the lid closes to trap the insect. It gets entangled in the hair of the pitcher and is killed by the digestive juices secreted inside the pitcher. अब एक एग्जाम्पल आपका पिचर प्लांट का है. लीव्स पिचर लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट होती हैं. जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इनके ऊपर बैठता है, लिड क्लोज हो जाती है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, एंटैंगल्ड हो जाता है. इनके अंदर बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. डाइजेस्टिव जूसेस जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं और पिचर प्लांट इनसे सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है. Another such example is of Venus flytrap. In Venus flytrap, leaves consist of two lobes. The inner surface has short stiff hair and is reddish in color to attract insects. The moment an insect touches the hair, the lobes mesh up together to trap it. अब Venus flytrap में क्या होता है? दो lobes होते हैं. अंदर वाले सरफेस में छोटी स्टिफ हेयर होती है एंड इट इज रेडिश इन कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट. लाल कलर से इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं. जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर बैठते हैं, स्लाइड इन कर जाते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस और एंजाइम्स की मदद से इंसेक्ट्स किल हो जाते हैं. प्लांट्स वो न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब कर लेते हैं. लेट्स फिगर आउट. Are pitcher plant and Venus flytrap also parasites? Why or why not? तो pitcher plant and Venus flytrap are actually not parasites because वो host body पे नहीं survive करते हैं. They get it externally. कोई insect आता है, अंदर slide in करता है and they consume the nutrition. But वो insects इनकी host bodies नहीं होती हैं. Hence they are not parasites. Now let's see how can we replenish soil nutrients. Replenishing the soil nutrients.
You must have seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields or gardeners using them in lawns and pots. Do you know why this is done? तो अक्सर आपने देखा होगा gardens में फार्मर्स भी अपने खेतों में लगातार कुछ छिड़काव करते रहते हैं. तो ये किस चीज का छिड़काव होता है? Let's see. We have studied that plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amounts in the soil keeps on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. तो plants को ग्रो करने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसमें से एक नाइट्रोजन भी है. देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जिनका प्लांट्स को जरूरत होती है. सारा का सारा सॉइल से नहीं मिल सकता है. हेंस फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो फार्मर्स और गार्डनर्स, जिसे हिंदी में कभी कभी खाद से भी रेफर करा जाता है, वो डाला जाता है ताकि आपकी मिट्टी और भी ज्यादा रिच हो जाए न्यूट्रिएंट्स में, प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब करे एंड दे ग्रो वेल. Following ways are adopted to replenish nutrients in the soil. Fertilizers and manure are added to the soil to increase its fertility because these areas or these are rich in nitrogen. In addition, these fertilizers contain potassium and phosphorus. अब fertilizers होते हैं, manures होते हैं, ये सब चीज़ें भी मिट्टी में डाली जाती हैं adequate amount में, ज़्यादा भी नहीं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही, ताकि और भी ज़्यादा soil enrich हो जाए. Nutrients can be replenished in the soil by growing leguminous plants like gram and peas in the field, since the roots of leguminous plants contain rhizobium bacteria which can fix atmospheric nitrogen into a soluble form in the soil. अब कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राम, पी, चने, छोले, ये सब जो फील्ड में होते हैं, तो इनके जो रूट्स होते हैं दे आर सच कि ये आपके राइजोबियम बैक्टीरिया कंटेन करते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रोजन फॉर्म में, अब्सॉर्बेबल यूजफुल नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. Then we have electrical discharge which occurs during lightning process also replenishes nitrogen in the soil. अब electrical discharge होता है, जो lightning, जब बिजली कड़कती है उस टाइम पे जो electric discharge होता है, उसकी वजह से भी soil में जो नाइट्रोजन होता है वो और भी ज़्यादा enrich हो जाता है. It is good to have soil tested in a lab before adding fertilizer to it to find out what nutrients are needed. Although nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it directly in the way they can use carbon dioxide. Plants can only absorb soluble forms of nitrogen from the soil through their roots. तो इससे पहले कि फार्मर्स भी छिड़काव करें सीधा, उससे पहले लैब में मिट्टी का टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि पता चले कि कौन से न्यूट्रिएंट की एक्चुअल में ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है. Now let's see the highlighted words. Nutrients, the components of food that provide energy to the body for carrying out various activities. Nutrition, the process of taking in food and converting it into energy and nutrients. Autotrophs, organisms which prepare their own food. Chloroplast, a green plastid containing chlorophyll. Chlorophyll, a green pigment present in leaves which traps the solar energy. Photosynthesis, the process by which green plants make their own food. Stomata, small aerating pores present in the leaves. Heterotrophs, organisms that are not capable of synthesizing their own food and depend on their organisms for their food requirement. Saprotrophs, organisms that take nutrients in solution from dead and decaying matter. Parasites, organisms that live on or in the organisms. Symbionts, organisms which live together for mutual benefits. And insectivores, organisms which feed on insects to fulfill the requirement of नाइट्रोजन. तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी. न्यूट्रिएंट के बारे में आपने पढ़ा, जो कुछ कंपोनेंट्स आपके खाने में इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी बॉडी के लिए. न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. देन यू हैव टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. वन इज ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स आपका खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. क्लोरोप्लास्ट होता है लीफ में, विच कंटेन्स क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पाता है. देन यू हैव स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. टाइनी पोर्स होते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है. देन यू हैव सैप्रोट्रोफ्स, एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. देन यू हैव पैरासाइट्स जो होस्ट बॉडी पे रहते हैं. सिम्बायंट्स जो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए एक साथ रहते हैं. देन वी हैव इंसेक्टिवोर्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन. Summing up, all living organisms need food for their existence. Food contains different components called nutrients. The mode of taking food by an organism and its utilization by the body is called nutrition. Modes of nutrition are autotrophic and heterotrophic. Plants make their own food and hence are called autotrophs. The organisms that cannot synthesize their food and depend on other organisms are called heterotrophs. Saprotrophic, parasitic and symbiotic are the different modes of heterotrophic nutrition in plants.
Nutrients in the soil are replenished by adding manure and fertilizers by growing leguminous plants, etc. तो जितने भी organisms, living organisms, be it plants, animals or human beings, we all require nutrition. अलग अलग मोड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, फूड लेने के लिए. ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, hence they are known as producers. Then we have heterotrophs, for example human beings अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, dependent on other things for the consumption of the nutrition. And then you have different modes of plants nutrition as well, saprophytic, parasitic, symbiotic. And then कुछ nutrients होते हैं, for example nitrogen, जिनको farmers अपने field में जैसे आपके leguminous plants को grow करते हैं ताकि आपका उनके रूट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करें और बाकी सारे प्लांट्स भी उनको अब्सॉर्ब कर सके. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि न्यूट्रिशन प्लांट्स में किस तरीके से जाता है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसको थरोली गो थ्रू करिए, सारी चीज़ें दोबारा से पढ़िए, समझिए, याद करिए और इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं प्लीज़ डू इट योरसेल्फ.